हेलो हेलो, मेरी बात सुन रहे हैं जी? अभी है ये सर। जी जी जी, ये आप पढ़ें जी। कौन पढ़ेगा? अक्सा की तरह अक्सा पढ़ें जरा। नंबर 2 जहां से मैंने हाईलाइट किया हुआ मेन कंक्लूजन। ये हम एनकोड प्रोजेक्ट जो है उसको पढ़ रहे हैं। इनकोड प्रोजेक्ट का पर्पसेस क्या है? चुप रहेगा नहीं। ये जहां से हाईलाइट हुआ हुआ है, अक्सा, हिना, Yes, yes, यास्मीन। sir, yes, sir. जी बेटा। Main confusion of encode stamma स्टेमेटोनोपुलस, ये बंदे का नाम है जो भी है। 2012 provides an overview of main conclusion of encode project as well as its significance and आपकी आवाज बहुत further. बैकग्राउंड में, थोड़ा सा करीब हो बेटा, माइक को करीब करें। Yes, sir. Further directions. Conclusion include the following. For ENCODE project, Consortium ETL 2007-2012. A human genome is pervasively परवेसिवली transcribed. We discussed this in chapter 10, while exons span less than 3% of the genome. RNA ये transcript आप ये are हमें एनकोड generated. प्रोजेक्ट ने बताया है कि जो एक्सॉन का टोटल एक्सॉन जो है वो 3% से भी कम है। आगे चलें। RNA transcript are generated from 62% of the genome. ठीक है, 62% जो है वो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स बनाता है। आगे 4% of the आपके माइक में कोई मसला है, सॉरी, आप नेक्स्ट टाइम सही कीजिएगा या अभी कर लें बेटा। okay, sir. अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं तो चलें। अलिशबा बोलें, अलिशबा रोल नंबर 3। जी सर। जी बोलें। ये बी से बोलें, बी से, ये वाला जो है। 80.4% of human genome is functionally active, defined as participating in at least one RNA and or chromatin associate event in at least one cell type. While this is present as perhaps the major single finding of ENCODE project, objects have been raised as the following section. Previous eliminates indicate that 10% of human genome is functionally active. Example Smith ETL 2004. इसका ये पेपर है, इसमें इसने प्रेजेंट किया हुआ है जी। Rather than 80.4% as combined by ENCODE project, indeed the ENCODE consortium argues that the 80.4% estimate is conservative because not all cell type or psychological condition were assayed. Any novel non-coding transcripts were identified, sometimes overlapping protein coding gene. A set of long non-coding RNAs was characterized. Darren ETL 2011. Novel transcription start sites were identified and characterized in detail. Regulatory sequence surrounding transcription start sites are symmetrically distributed. Previously, it had been true that there is a bias towards the location of regulatory sequence upstream of gene. जी। Histone modification and chromatin accessibility predict the presence and activity of transcription. ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि जो एनकोड प्रोजेक्ट ने ओवरऑल हमें डीएनए के एलिमेंट स्टडी करके बताए हैं, ये उनका कंक्लूजन है। ये एक एक पॉइंट उसने बताया हुआ है, लेकिन इनके ऊपर कई पेपर जी। तौहा या तलहा है, तौहा या तलहा है, ये जरा पॉइंट पढ़े एफ से। तौहा या तलहा।
of the 80.4% of the human genome spanned by elements defined by ENCODE as functional. हाँ, If थोड़ा we सा जरा exclude माइक the को करीब RNA कीजिएगा प्लीज। सर आपकी हेडफोन आवाज पहना हुआ है। एको एक कर रही है। सेकंड सर, मैं हैंड फ्री लगा लो सर, हेडफोन पहना हुआ है। हेलो जी 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 बोलें। Yes, sir. These regions include sites of hypersensitivity to digestion by the endonuclease, DNase, one transcription factor binding sites or DNA binding sites defined by chromatin immunoprecipitation followed by next generation sequencing. CH1P हाँ जी, sequence चिप 1, चिप सेक किसे बोलते हैं? क्रोमोसोम अमीनो प्रेसिपिटेशन chipsets. फॉलोड बाय नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। चिप सेक डाटा इसे बोलते हैं। जी। चिप सेक डाटा। जी। ChIP-seq. The consortium reported finding 4.1 million DNAs, one hypersensitive sites, and estimated this is half of the true total. ठीक है जी। 5% of the nucleotides in the human genome are under evolutionary constraint in mammals. Of these constraints basis, there is experimental evidence of some functional for about 60%. Not all bases that are under evolutionary constraint have been experimentally shown to have function. जी। ENCODE has been extended to the mouse genome, mouse ENCODE consortium et al. 2012. It also includes the model तो कह organism. रहे हैं जी इनकोड को ह्यूमन से बढ़कर फिर माउस में भी ले गए, प्रोजेक्ट को जरा एक्सटेंड कर दिया। जी। Mod ENCODE project which generated details functional annotation for fruit fly genome, Drosophila melanogaster and मेलानोगास्टर, यानी कि मॉडल एनकोड प्रोजेक्ट शुरू हो गया। अब एक एनकोड से एक प्रोजेक्ट से कई प्रोजेक्ट शुरू होते जा रहे हैं। and nematode. We describe these projects in chapter 19. ठीक है जी, आगे चलें। Point number 3 है where to find ENCODE data. जी, very good. UCSC genome bioinformatics sites serve as the central repository to browse and repository to browse repository. जी। Repository to browse and mine ENCODE data. जी। Bloom et al. 2013. It also enables downloads of raw and processed data files. Many of the data sets are also available at the Gene Expression Omnibus Geo database at the National Center for Biotechnology Information NCBI. दोबारा जरा पढ़ें। Where to find ENCODE data? The UCSC Genome Bioinformatics site serve as a central repository to browse and mine ENCODE data. ठीक है, UCSC की साइट खोलेंगे तो वहां पर ENCODE प्रोजेक्ट का लिंक पड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे it also enable download of raw and processed data files. Many of the data sets are also available at the GEO. ये GEO database वो वहीं पड़ा हुआ है। जियो ओमनीबास इन्हें बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन ओमनीबास, जहां पर हम न्यूक्लियोटाइड नहीं खोलते, PMC न्यूक्लियोटाइड जीन जीनोम NCBI में, वहां पर जियो डेटाबेस है। मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। As well as the sequence read archive. NCBI की दो छोटे डेटाबेसेस हैं। एक है SRA सीक्वेंस रीड आर्काइव और दूसरे नंबर पे है GEO जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस। यहाँ पर भी पड़ा हुआ है कुछ डाटा एनकोड का, और ज्यादातर एनकोड का डाटा UCSC जीनोम ब्राउजर पे पड़ा हुआ है। जी। The journal Nature also offers an extensive ENCODE explorer with many resources, including links to publication. जी। The ENCODE project consortium 2011 also provides a useful user guide to a project. ठीक है जी, ये जरा एक सेकंड जरा मैं खोलते हैं जरा UCSC में कहाँ पड़ा हुआ है? UCSC ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? No sir. UCSC
ये हुई है? Yes, sir. अच्छा, ये UCSC जीनोम ब्राउजर, यहाँ देखें एनकोड कहाँ पड़ा हुआ है? जीनोम, जीनोम ब्राउजर्स, टूल्स, मिरर्स, डाउनलोड्स, माय डाटा, प्रोजेक्ट्स, हाँ ये पड़ा हुआ है। जीनोटाइप टिश्यू एक्सप्रेशन, जीटेक्स नहीं, ये वाला एनकोड, यस। ठीक है जी, ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द डीएनए एलिमेंट्स एट यूसीएससी। ठीक है जी, तो ये फुल फ्लेज एक लंबा चौड़ा डाटाबेस है जिसमें आपको ओवरऑल डीएनए के एलिमेंट्स बताए जाते हैं, एक्सॉन कितने हैं, एंट्रॉन कितने हैं, कितने % ये कोड करते हैं, तो ओवरऑल ये आपको बता रहा है। इसी तरीके से उसने जो एनसीबीआई का जिक्र किया हुआ है, तो अगर हम एनसीबीआई पे जाएं, एनसीबीआई पे जाएं तो आप फर्ज किया, ये देखें यहाँ पर होगा जियो, हाँ ये पड़ा हुआ है, ये देखें ये जियो, जियो प्रोफाइल है, जियो डाटा सेट है, जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस। ठीक है, तो इसके अंदर आप कोई भी चीज खोलेंगे तो ये जो जियो डाटा सेट है ये लिंक्ड है विद एनकोड प्रोजेक्ट। तो एनकोड प्रोजेक्ट की जो फाइंडिंग है ये यहाँ पर जियो डाटा सेट पे भी आपको मिलती है। तो यहाँ पर आप देख लें, कोई भी एक्सपेरिमेंट देख लें, HSPB1 जीन का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, नीचे उनके आप पबमेड लिंक्स हैं फुल PMC के ऊपर, इनको डाउनलोड का या ये है। ठीक है जी, ये डाउनलोड डाटा कर सकते हैं, यानी कि ये क्या डाटा है, जीनोम वाइड प्रोफाइलिंग ऑफ द सेंट्रल RNA बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है जी, ये कहाँ से आपको आ रहा है, ये जियो डाटा सेट पे भी उस साइंटिस्ट ने सबमिट करवाया हुआ है और एनकोड पे भी करवाया हुआ है। तो ये आपको लिंक दे रहा है इस डाटा सेट का, ये पूरे का पूरा डाटा सेट आपको। इसी तरीके से एक और जगह जो उसने बताई है वो है SRA। देखें SRA, हाँ ये देखें ये SRA है। ठीक है जी, तो इसको आप SRA पे भी देख सकते हैं, सीक्वेंस रीड आर्काइव्स। तो सीक्वेंस रीड आर्काइव जो है, सीक्वेंस रीड आर्काइव और जियो, ये दोनों लिंक्ड हैं विद एनकोड प्रोजेक्ट। तो अगर आप SRA को यूज करते हुए कोई डाटा लेना चाहें तो ये आपको निकाल के देगा वहां से एनकोड से, और अगर आप जियो से करेंगे ये भी निकालेगा, रिट्रीव करेगा डाटा को आपके एनकोड से। तो ये बहुत सारे सिमिलर जो डाटाबेसेस होती हैं ये आपस में लिंक्ड होती हैं। तो ये हम SRA सीक्वेंस रीड आर्काइव में हम गए हैं, उसने हमें एक्सोम सीक्वेंसिंग ऑफ होमोसेपियंस के तमाम एक्सोन्स का डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम ठीक है जी, तो ये इंशाल्लाह जो है ना हमारा आगे कितना अभी चल रहा है, ठहरें जरा, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम की आगे आ गई। अच्छा जी, ये आगे आपको UCSC जीनोम ब्राउजर्स का जिक्र करेगा। हम वो तो कर चुके हैं ना, जीनोमिक डाटा व्यूअर, जीनोमिक डाटा व्यूअर Yes, कर sir. चुके हैं हम, और ये UCSC जीनोम ब्राउजर है। ठीक है, जीनोम को ब्राउज करने के टूल्स देख रहे हैं। इसी तरीके से एनकोड हमने देख लिया है। ठीक है जी, और लेट्स सी आगे जाके क्या चीजें, ये भी UCSC जीनोम ब्राउजर ही है। ठीक है, तो इसमें उम्मीद है कि ये आपके कोर्स कंटेंट्स भी साथ साथ कवर होते जाएंगे और ये किताब भी पढ़ते जाएंगे, और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी बताते जाएंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम दोबारा डाइवर्ट हो जाते हैं, जो मेरे पास थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है और उसके बाद हम दोबारा इधर आ जाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो मैं देख रहा हूँ वो आपको जीनोम एक्सप्लोर करने के मुख्तलिफ टूल्स दिखा रहा है। जीनोमिक डाटा व्यूअर, UCSC जीनोम ब्राउजर, एनसेम्बल जीनोम ब्राउजर, और ये आपका एनकोड। ठीक है, तो इससे आगे जाते हैं, फिर देखते हैं कि इंशाल्लाह कैसे ये करवट बदलता है ये सारे का सारा। ठीक है जी, और हम अपने कोर्स आउटलाइन के ऊपर भी नजर रखेंगे ताकि हम बहुत आउट ऑफ स्कोप ना चले जाए। ठीक है जी,
तो इंशाल्लाह आप क्लास अब ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रमज़ान टाइमिंग के मुताबिक मुझे इंज़माम भेज दीजिएगा और फिर इंशाल्लाह रमज़ान टाइमिंग के मुताबिक आगे कंटिन्यू करते हैं। आप तमाम लोगों को रमज़ान की सर मुबारक सेंड और कर दिया ग्रुप में। जी खैर ठीक है, मुबारक आप सर आपको। ठीक है जी, आप तमाम लोगों को रमज़ान की मुबारक और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले टाइम पे। आपको भी सर। जी सर आपको शुक्रिया भी जी, मुबारक। आपको भी सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।